welcome once again to my YouTube channel, Amazing Chemistry Classes. I'm your friend, your dost, and an educator by profile, Dr. Rohit Chakravarti. Welcome you, all my viewers, and thank you so much for subscribing my channel. So today we are going to discuss about molecular orbital theory and through valence shell electron pair repulsion theory, few more hybridizations of the molecule. So here I have given an example of phosphorus pentachloride. Let me just go through those slides which I have already discussed in my previous videos. So bachcho, it will take some time so that I can move on to that slide. So extremely sorry, just because we have to go through that slide directly so that I'll be able to discuss with you. Otherwise it will take a lot of time. All those slides I have already shared with you. So let me quickly go on to the slides. Yes, here it is. So we are going to discuss about the phosphorus pentachloride structure. So in phosphorus pentachloride, we can see how there is a electron dot structure and the participation of electrons from each atom. There are 5 chlorine atom and 1 phosphorus. So from phosphorus there are pink dots through which I have shown the 5 electrons, and from chlorine you can see the green dots. So chlorine is having 7 electrons, so out of 7, 1 electron will participate in the bond formation. So now as per valence shell electron pair repulsion theory, you can see there is a formation of sp3d2 hybridization. So there is one 3s 3 p orbital is px py pz. जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया p is having dumbbell shaped. Okay, so here I have shown s is having spherical shape, p is having dumbbell shape, and d orbitals are having double dumbbelled. And in d we can distinguish into dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. So through this I can show you the participation of sp and d orbitals, how there is a distribution of electrons through valence shell electron pair theory, and the bond angle will be 120 degree, and the shape of the molecule is trigonal bipyramidal. So this is how the presentation of the phosphorus pentachloride structure. So here only through this you can see there's a head-on overlapping between the p orbitals of chlorine atom and the and between p orbital, and there is a formation of sp3d, and the shape is trigonal bipyramidal. Okay, now talking about molecular orbital theory, very important theory बच्चों. So you guys need to focus on in एक एक point मैं आपको clear कराता चलूँगा. First point is molecular orbital theory was developed by F. Hund and R.S. Mulliken. So they were the two scientists who has given this थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. बेसिकली क्या डिफरेंस होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस्ड अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स. एटम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल में जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं. सिमिलरली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स and there is a formation of molecular orbital, whereas atomic orbital में हमारे क्या होता था, there is a formation of atomic orbitals due to overlapping of orbitals of different atoms. Similarly molecular orbital में हमारे molecular orbital का overlapping होगा. So the second point is the salient feature of this is electrons in a molecules are present in the various molecular orbitals.
एटम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेम ही है, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरलैपिंग हमेशा दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होगा जिनकी एनर्जी सेम होगी। सपोज 1s एंड 1s, टू एटम्स अगर हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन के, तो 1s एंड 1s के बीच में हमारा ओवरलैपिंग होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक का 1s और दूसरे का 2s, सो दे विल ऑलवेज बी overlapping between the two atomic orbitals of comparable energy and the proper symmetry combined to form a molecular orbital. There will be a proper symmetry which results in the formation of molecular orbitals. Moving on to the next point, I think बच्चों मैं ज़्यादा पेस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स रखने हैं जो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा है। वहाँ पे हम लोग एटम्स के ऑर्बिटल की बात करते हैं, यहाँ हम मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करेंगे, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वहाँ पे हमने जो जो पॉइंट्स रखा था उनको हमें एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रखते हुए अपने दिमाग में हमें डिस्कस करना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई। यहाँ पे सिमिलरली हमारे टू एटॉमिक न्यूक्लियाई कम क्लोजर, क्योंकि जो इसमें 1s के हैं, दो दो टू न्यूक्लियस N2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, देयर आर टू एटम्स, दैट इज वन नाइट्रोजन एंड सेकंड नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन एटम्स के अंदर दो एटम्स का पार्टिसिपेशन है, दो न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर, दोनों क्लोज आते हैं, दे विल बी ओवरलैपिंग, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ टू एटम्स, और दो इसमें न्यूक्लियस होते हैं। तो वही लिखा हुआ है इसमें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई, क्योंकि देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन टू न्यूक्लियाई, so there is influence of two nuclei which depend upon the number of atoms in the molecule। डिपेंड किस पे करेगा, जितना ज्यादा हमारे पे यहाँ पे एटम्स का पार्टिसिपेशन होगा। thus an atomic orbital is a monocentric while a molecular orbital is polycentric। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा मोनोसेंट्रिक होता है बिकॉज देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, बट हमारे मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन टू न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। Moving on to the next point, that is the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की वजह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। वन इज नोन एज बॉन्डिंग, जो कि हम नीचे के साइड रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसको हम एस्ट्रिक साइन से डिनोट करेंगे, दैट इज और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमेशा हमारे एनर्जी कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग की हमारी हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज वन इज नोन एज bonding molecular orbital and the second one is known as anti-bonding molecular orbital। Bonding molecular orbital will always have a lower energy and more stable, and anti-molecular orbital will have a higher energy। The bonding molecular orbital has lower energy and the greater stability, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो इट विल बी मोर स्टेबल, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल हैव अ हायर एनर्जी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। Now talking about just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, electron की distribution किसी भी nucleus के around atomic orbital में ही पाई जाती है, कहीं और नहीं मिलते। हमने हमेशा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल पे। Similarly, the electron probability distribution around a group of a nuclei in a molecule is given by a molecular orbital। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक मॉलिक्यूल में कहाँ होगी, अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में इन अ मॉलिक्यूल, एंड इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस, जैसे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल्स करते हैं वो तीन प्रिंसिपल हमारे फॉलो होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज ऑफ रूल, सेकंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन इज हुंस रूल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे वो तीन ही रूल फॉलो होते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमारे 5 जो दिए गए हैं, दैट इज LMN, तो वही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑफ रूल ने क्या कहा था कि जो सेम एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल्स हमारे सेम एनर्जी के हैं तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हुंस रूल में मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात किया था। सेम रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी डिस्क्राइब बाय लीनियर कॉम्बिनेशन, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दैट कैन टेक बाय एडिशन एंड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम साई की बात करते हैं, सो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू, जहाँ पे हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, साई ए प्लस साई बी, सो देयरफॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सो स्टार को हम एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे एज फॉर्म, सो सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। So the molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbital is called bonding molecular orbital, जहाँ पे हमारे फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल का थ्रू सिग्मा बॉन्ड, so that is known as bonding molecular orbital, while the molecular orbital that is sigma asterisk formed by the subtraction of atomic orbital। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारा एडिशन हो रहा है दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, वेयर एज हम एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ हमारा सिग्मा एस्ट्रिक की बात करेंगे तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की हमेशा एनर्जी लेस होगी, एंटी बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे देन योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की है, हाइड्रोजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सो 1s 2 एटम्स का हमारा पार्टिसिपेशन है, तो दो तरफ हम 1s लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड सिग्मा जी में हमारा नीचे हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। So this is how through molecular orbital theory we can explain the participation or involvement of electron and the distribution of electron. So next point is in the formation of bonding molecular orbitals, the two electron waves of the bonding atom reinforce each other due to the constructive interference। जब भी क्या होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स है, अगर आप एक तरफ रोप को पकड़ के अगर उसको स्विंग देंगे तो उसमें कई बार क्या होता है जो फर्स्ट पाथवे स्विंग किया जरूरी नहीं है कि वो सेम पाथवे फॉलो करे, कर भी सकता है नहीं भी, अगर करते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव, अगर रीइंफोर्स करेंगे तो किस लिए करेंगे, ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन वेव्स क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव करेंगे। So there are 2 points very important to remember here. There is one constructive interference and the second one is destructive interference. Now talking about the next one, that is a bonding molecular orbital always possesses a lower energy। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लेसर एनर्जी होगी बट दे आर मोर स्टेबल देन ईदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट। In contrast, the electron placed in the anti-bonding molecular orbital destabilizes the molecule, and this is because the mutual repulsion, because anti-bonding में क्या होगा, there is a mutual repulsion between them of the electron in the orbital and it is more than the attraction। वहाँ पर repulsion ज़्यादा होगा attraction से, so in between the electrons and the nuclei which causes a net increase in energy। So overall there is a increase in energy of anti-bonding molecular orbitals than your bonding molecular orbital। Now condition for the combination of atomic orbital, very important point to remember, the linear combination of atomic orbital to form the molecular orbital take place only if the following condition will be satisfied। तो linear atomic combination के लिए following points है जो बहुत ही important है। First point is the combining atomic orbital must have the same or nearly the same energy। सेम बात जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करते हैं जब दोनों की एनर्जी सेम हो, तभी देयर इज ओवरलैपिंग, लाइक 2s and 2s, 1s and 1s, 1s और 2s की कभी भी हमारी ओवरलैपिंग नहीं होगी। दिस मीन्स दैट द 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद वन अनदर इज 1s ऑर्बिटल बट नॉट विद द 2s। 1s का 2s के साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, and appreciably higher than that of the 1s orbital। Second point is the combining atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis। जो हमारे atomic orbital combine कर रहे हैं they must have the same symmetry, दोनों की symmetry। suppose अगर एक spherical है तो दूसरा भी spherical होना चाहिए, अगर एक हमारा डम्बल शेप्ड है तो दूसरा भी डम्बल ही होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी, दे शुड हैव द सेम एनर्जी एंड इन विल नॉट कंबाइन इफ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। और अगर सेम सिमेट्री नहीं होगी तो वो नहीं कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ द अदर। एक का 2pz दूसरे के 2pz के साथ हमारा कंबाइन करेगा, बट कभी भी एक 2px का दूसरा 2py के साथ नहीं होगा। कॉम्बिनेशन हमेशा सेम का होगा, 2pz का 2pz के साथ, 2px का 2px के साथ, 2py का 2py के साथ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट।
तो ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, सो दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होगा। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर द मॉलिकुलर फॉर्मेशन। सो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द एटॉमिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, कितने टाइप के होते हैं हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल। First point is molecular orbitals of diatomic molecules are designated as diatomic molecule like Cl2, O2, N2। इस टाइप के हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में हमारे हम बॉन्ड कैसे शो करते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। ओके, सो इन नोमेनक्लेचर सिग्मा molecular orbital are symmetrical around the bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical। सिग्मा हमारे लिए सिमेट्रिकल होते हैं वाइल पाई को हम नॉन सिमेट्रिकल कंसिडर करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें हम लोगों को समझना है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन 2 एटम्स फ्रॉम 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स डेजिग्नेटेड एज सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s। तो बॉन्डिंग के लिए हमारा सिग्मा 1s आएगा और एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार 1s, और इसको हम एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। इन द सेम वे 2s के लिए या 2p के लिए भी होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दैट इज एस्ट्रिक स्टाइन, पाई 2px, पाई 2py। Next is the energy level of these molecular orbitals have been determined experimentally from the spectroscopic data for homonuclear diatomic of second row elements of the periodic table. So the increasing order of energy of the various molecular orbital. So this is the sequence of the increasing order of the molecular orbital with increasing amount of energy, increasing order of the energy of the various molecular orbital. So lowest सबसे least होती है sigma 1s की, then it is greater sigma asterisk or sigma star anti-bonding 1s. So this is the sequence you can see. Now talking about the fluorine F2 में हम लोगों को पता है total number of electrons कितने होते हैं। So this is the presentation. First we have shown 2s where you can see the bonding and anti-bonding electrons in 2 sigma and 2 asterisk sigma, and similarly if we talk about 3 sigma तो 2p and 3 sigma, so 1 2 2 1 होगा। इसमें याद रखना बच्चों जो हमारे 14 से नीचे होता है इसका 1 2 1 2 में हम प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और जब हमारे 14 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रॉन्स का तो इसका 1 2 2 1 होगा। मैं 3 सिग्मा जी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 2 1, और अगर हमारे ये 14 से नीचे होता है तो 1 2 1 2 चलता है उसमें। ओके, so this is the difference between molecular orbital diagram of fluorine because it is having more than 14 electrons। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन जो 3 सिग्मा का करेंगे वो 1 2 2 1 का करेंगे। So pi and pi asterisk anti-bonding molecular orbital and 3 sigma anti-bonding. So however this sequence of energy levels of molecular orbital is not correct for the remaining molecules. For instance, it has observed that experimentally that for molecules such as boron, carbon and nitrogen जिनका हमारा total electrons 14 से less होगा उसका हमारा sequence हम ये follow करते हैं। whereas जब हम greater than 14 electrons की बात करेंगे तो इसमें हम लोग इस तरह के इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन शो करेंगे। सो ये हमारा सीक्वेंस होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का। नाउ बच्चों नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिकुलर बिहेवियर। सो टिल देन थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आया होगा, इसमें मैक्सिमम मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट में मैं आपको ल्यूमो और होमो के बारे में बताऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and do share and subscribe my channel.